हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x1 y1, B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x2 y2 ਤੇ C ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x3 y3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ C ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ x3। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, x1। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ R। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ x ਦੀ ਹੋਏਗੀ x2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ S। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ y2। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ T। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ y1। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੈ Q P Q R S T U ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ y3। और सानू कटना की है इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अपन करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो अगर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया करना है, मैं की सोचता, मैं की करूँगा, मैं कह रहा वा आप की करते हैं पहला इस ट्रपीजियम का एरिया कट लेने। इस ट्रपीजियम का एरिया कट लेने। केड़ा ट्रपीजियम है, A B R Q। इस ट्रपीजियम का एरिया कट लेने। फिर उस तो बाद एक ट्रपीजियम का एरिया कट देने। ठीक है, इन्होंने दोनों ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। BC PR ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਹ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ट्राइंगल ABC का, तो मैनू की करना होगा, एरिया देखना होगा एक ट्रपीजियम का। केड़े वाला ट्रपीजियम है, ABRQ। ABRQ प्लस करना होगा इन एरिया ऑफ ट्रपीजियम आ वाला ACPQ। ते विचों माइनस करना होगा एक एरिया ऑफ ट्रपीजियम जो कि है अपने को BCPR। ठीक है, ਅਸੀਂ जो रिक्वायर्ड एरिया करना है, ਅਸੀਂ ਇਸ ट्रपीजियम ਦਾ कर लांगे, इस ट्रपीजियम ਦਾ कर लांगे, फिर नीचे वाले सारे ट्रपीजियम ਦਾ माइनस कर देंगे। मेरे को की बचूगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 1/2, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 1/2 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ARBQ। एक करना है एरिया ऑफ ट्रपीजियम ACPQ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ BCPR। तो पहला तो आप करते हैं एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABRQ वाला। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ। ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ BR ਔਰ ਇਹ ਹੈ AQ। तो मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ BR plus AQ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਆ ਵਾ, तो ਇਹ ਕੀ ਹੈ RQ। ठीक है, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ACPQ। ACPQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। तो ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ AQ ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CP। तो AQ ਇਨਟੂ CP ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ QP। ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ACPQ। तो BCPR देखो BCPR ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈ BR ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ CP। तो BR plus CP और इनटू हाइट। हाइट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, जो कि आएगा अपने को RP।
ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ जो कि ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰ BC PRP ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ABC ਆਊਗਾ। तो सब तो पहला तो आप BR की वैल्यू देखते हैं। देखो आ रहा BR, ठीक है, BR की वैल्यू इन्ना सानू पता है, ये वैल्यू कितनी है y2, तो मैं इत्थे लिख दिता BR की जगह y2 प्लस AQ आ रहा है AQ, ये पूरी हाइट कितनी है अपने को y1 इनटू RQ आ रहा सानू पता है इत्थों दी इत्थे तक दी लेंथ x2 सी, इत्थों दी इत्थे तक दी लेंथ x1 है। सानू केड़ी वैल्यू चाहिए है वो कितना आएगी पूरी x2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर x1 माइनस कर दूंगे तो लिख दिता x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस इत्थे आ गया 1/2। हुन AQ केड़ी है आ रही, ਇਹਦੇ ਲਈ वैल्यू सानू पता है y1 है, ठीक है, प्लस CP चाहिए है, CP केड़ी है आ वाली, ਇਹਦੇ ਲਈ वैल्यू कितनी है y3, ठीक है, ते नाल की चाहिए है PQ देखो केड़ा है आ रहा PQ हुन सानू पता है ये पूरी टोटल लेंथ सानू पता है कितनी है x3 और इन्नी लेंथ है x1। तो जे मैंने सिर्फ ए वैल्यू करनी है तो पूरी x3 दे विचों x1 माइनस करनी पड़ेगी, तो इट मीनस है कि आ गई x3 माइनस x1, फिर माइनस 1/2 अपने को BR, देखो BR आ रहा, ਇਹਦੇ ਲਈ वैल्यू कितनी है अपने को y2, तो इत्थे लिखा y2 प्लस CP देखो आ रही CP, ਇਹਦੇ ਲਈ वैल्यू है अपने को y3, तो इत्थे लिखा y3 ते ना लिखना सी RP, तो देखो जेड़ा RP है वो आ रहा RP आ रहा, तो देखो सानू पता इत्थों दी पूरी वैल्यू x3 सीगी और इन्नी वैल्यू x2 है, तो आ वैल्यू कितनी आ जाएगी x3 माइनस x2, ठीक है। तो असी की किया सिर्फ वैल्यूज पुट कीतियां ने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABRQ, एक करना सीगा एरिया ऑफ ट्रपीजियम ACPQ और उनदे विच माइनस करना सी एरिया ऑफ ट्रपीजियम BCPR। एरिया ऑफ ट्रपीजियम होंदा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ते सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ਆਪਾਂ ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ और सिर्फ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ वैल्यूज पुट ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ सिर्फ और सिर्फ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। पहला तुसी x1 दी टर्म्स इकट्ठियां कर लेना, जब तुसी x1 दी टर्म्स सारियां खोल लोगे ब्रैकेट्स तो x1 दी टर्म सिर्फ बचेगी वो आएगी y2 माइनस y3 आऊगा। जो तुसी x1 कॉमन कटोगे सारा सॉल्व करके, प्लस x2 वाली टर्म्स नू इकट्ठे कर लेना, जो तुसी x2 वाली टर्म्स इकट्ठी करोगे तो इत्थे सिर्फ बचेगा y3 माइनस y1, ते जदों तुसी x3 वाली टर्म्स इकट्ठियां करोगे तो इत्थे आ जाऊगा y1 माइनस y2। सो आ क्या आ गया साडे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिनके कोऑर्डिनेट नहीं x1 y1 x2 y2 ते x3 y3, तो उनका आंसर क्या आता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट्स। सो ए है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनके कोऑर्डिनेट सी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 उनका फॉर्मूला आप प्रूफ करके दिखाया है। बट ऑब्वियसली तुहानू प्रूफ नहीं पूछेंगे, तुहानू सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ तुहानू दस्या है मैं इत्थे करके ताकि तुहानू पता लगे फॉर्मूला आया कित्थों है, बट तुसी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि होंदा एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज 1/2 x1 नाल आ जाऊगा y2 माइनस y3 प्लस x2 नाल आ जाऊगा y3 माइनस y1 प्लस x3 नाल आ जाऊगा y1 माइनस y2। सो ए एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आप किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC करना है, A के कोऑर्डिनेट ने x1 y1, B के कोऑर्डिनेट ने x2 y2 तो C के कोऑर्डिनेट ने x3 y3, तो एरिया कितना होएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, -1 -4, -6 and -3, -5। ਇਹਦਾ मतलब आ A होगा, ए पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B और ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ C। ए कोऑर्डिनेट होएगा x1 y1, ਇਹ ਹੋਗਾ x2 y2 और ਇਹ ਹੋਗਾ x3 y3। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ 1/2 ਲਿਖੋਗੇ x1 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y2 माइनस y3 प्लस x2 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ
y3 माइनस y1 प्लस x3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y1 ਮਾਈਨਸ y2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। देखो x1 कितना है अपने को 1, y2 माइनस y3 मतलब 6 माइनस माइनस 5 प्लस x2 जो कि है -4 इंटू y3 माइनस y2 जो कि है -5 माइनस -1, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस x3 जो कि है -3 इंटू y1 माइनस y2 जो कि है -1 -6। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x1 की जगह 1, y2 की जगह 6, y3 की जगह -5, फिर x2 की जगह सी -4, y3 की जगह -5, y1 की जगह -1, x3 की जगह -3, y1 की जगह -1 एंड y2 की जगह 6। क्योंकि साडे कोल x1 x2 y1 है सीगे, x2 y2 है सीगे, x3 y3 है सीगे, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीते। हुण अपन सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, क्योंकि इनके अगे माइनस साइन है, इनके अगे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। सो 6 + 5 कितना होएगा 11, 11 × 1 क्या होएगा 11 प्लस इथे है -4। हुन अगेन इथे माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया -5 + 6 सॉरी -5 + 1, तो प्लस माइनस की होता है माइनस, तो -5 + 1 की बच जाएगा -4, ठीक है। प्लस इथे -3 सीगा, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, तो -1 -6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ -7, ठीक है। सिंपल जी कैलकुलेशन है। ये आ गया 11, 4 × 4 की हो जाएगा 16 और नेगेटिव नेगेटिव की हो जाएगा प्लस, तो इतने आ गया +16, 3 7 से 21, 21 ਤੇ नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस की होता है प्लस, सिर्फ ऐड करना है। हम आप 11 16 और 21 नो, ये आ गया 8 3 48, सो आ गया 1/2 नाल आ गया 48, सो ये कटिंग हो गई 24, सो आंसर कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो साडे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल जिंदे कोऑर्डिनेट्स हम दिते हुए सीगे, सिर्फ असी फॉर्मूला यूज किया और साडा आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are p -1.5, 5, Q है 6, -2 एंड R है -3, 4। तो ये बोल रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है। अगेन आप ट्रायंगल ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उस तो पहला इनू नाम दे देने x1 इनू y1 इनू x2 इनू y2 और इनू x3 इनू y3। सानू एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, वो की सीगा 1/2 आंदा है x1 नाल आऊगा y2 माइनस y3 प्लस x2 नाल आ जाऊगा y3 माइनस y1 प्लस आ जाऊगा x3 नाल आ जाऊगा y1 माइनस y। सो इस फॉर्मूले सिर्फ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये आ जाएगा 1/2, x1 की जगह असं की लिखांगे -1.5, y2 माइनस y3 मतलब -2 -4 प्लस x2 की जगह पर 6 पुट करना है, y3 4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है अपने को -3 नाल है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 माइनस ऑफ -2 की कितना सी x1 की जगह -1.5, y2 की जगह -2, y3 की जगह 4, x2 की जगह 6, y3 की जगह 4, y1 की जगह 3, x3 की जगह -3, y1 की जगह 3 और y2 की जगह -2। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, साडे कोल x1 y1 सी, x2 y2 सी, x3 y3 सी, सिर्फ असी फॉर्मूले वाले तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ये आ गया 1/2 -1.5, देखो इतने माइनस माइनस की हो गया प्लस, बट साइन केड़ा आएगा वड्डे वाला, वड्डे अगे नेगेटिव साइन है, तो इतने आ गया -6, इतने प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 6 × 1 -3, इतने क्या आ जाएगा माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 कितना आ गया 5, 1/2। हुन -1.5 ਨੂੰ जरा 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके देखते हैं -6 ਨਾਲ, तो आ गया 39.0 जो कि 9 ही हो गया। और सानू पता है माइनस ਨੂੰ ਜਦੋਂ माइनस ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कटिया जाता है, सिर्फ 9 बचा +6 -15, क्योंकि 3 5 का की होएगा 15, तो 9 + 15 9 + 6 कितना आ गया 15, नाल की आ गया -15 ਤੇ नाल है 1/2, तो यह क्या आ गया 0 ਨੂੰ हाफ ना मल्टीप्लाई जो कि आ गया 0,
सो 0 स्क्वायर यूनिट्स अपने कोल क्या आ गया आंसर आ गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਦੀ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ठीक है क्योंकि अपने कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 0 आ गया ਇਹਦਾ मतलब है तीनों पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्रायंगल ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ क्योंकि ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब है ट्रायंगल ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟੇਸਟ ਸਾਈਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ PR PQ + QR ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਵੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ 0 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ prove that 3 points are collinear ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 points ਨੂੰ assume ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ triangle ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ triangle ਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ triangle ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ 0 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ट्रायंगल नहीं वो की है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है सो इत्थों दी सानू की मतलब रिजल्ट मिलया कि P Q और R doesn't form a triangle because area क्या आ रहा है 0 तो P Q R की ने कोलिनियर ने सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फाइंड K if A जिनके कोऑर्डिनेट ने 2 3 B जिनके कोऑर्डिनेट ने 4 K एंड C जो कि है 6 -3 है R कोलिनियर उन्होंने बोला कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ने सानू K दी वैल्यू कढो ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਸੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कि ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1/2 x1 ਨਾਲ ਆਏਗਾ y2 - y3 x2 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y3 - y1 ਆ ਜਾਊਗਾ x3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y1 - y2 तो इन्हों सारे नु सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए 0 बिकॉज पॉइंट की ने कोलिनियर ने इट मींस एंड द एरिया क्या होगा 0 होगा ए साडा काम करूगा x1 दा ए y1 दा ए x2 दा आ y2 दा एंड ए x3 दा और ए y3 दा सो ऐसे ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 1/2 x1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 y2 - y3 तो y2 कितना है k -3 प्लस x2 जो कि है 4 नाल आना है y3 - y1 तो y3 कितना है -3 y1 भी कितना है 3 प्लस x3 दी जगह 6 y1 - y2 जो कि आ गया 3 - k इक्वल्स टू 0 ऐसे की कितना है x1 दी जगह 2 पुट किया y2 दी जगह k पुट किया y3 दी जगह -3 x2 दी जगह 4 y3 दी जगह -3 y1 दी जगह 3 x3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 y1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਐਂਡ y2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ k ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x1 y1 ਹੈ x2 y2 ਹੈ ਔਰ x3 y3 ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 2k ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2k + 3 प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ तो आ गया -6 तो 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ -6 ਦੇ ਨਾਲ प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 × 3 - k ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 2k + 6 और ये जो मल्टीप्लाई होगा आएगा -24 + 18 - 6k सिर्फ ब्रैकेट्स खोलिए आप
ठीक है। ये आ गया 1/2 2k प्लस माइनस 6k कितना आ गया -4k, क्योंकि सानू पता है प्लस माइनस माइनस। हुण 66 ਵਿੱਚ 18 पहला ਆਪਾਂ ऐड कर लेने 18 + 6 देखो 14 और 24, तो ये आ गया 24 प्लस विच नाल है -24, ये कैंसिल हो गया, ये सारा 0 ਦੇ इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो +24 -24 कैंसिल हो गया, इत्थों आ गया 1/2। ठीक है, नाल आ गया -4k = 0, 2 उधर जाके 0 हो गया, तो इत्थों आ गया -4k = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 / -4 जो कि आएगी 0। सो इसका मतलब आंसर साडा की आया है k = 0। ठीक है, केड़ा कॉन्सेप्ट आप यूज किया है, अगर वो बोल रहा है तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो उनका एरिया क्या होएगा 0, सिर्फ सॉल्व किया सिंपलीफिकेशन की साडे कोल k की वैल्यू की आ गई 0। इट मीनस a b और c को लीनियर ने तो उत्थे k की वैल्यू की होएगी 0 होएगी, क्योंकि आपां इस तरीके नाल कट के देखिया। सो असी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दे नाल असी बाकी फिगर्स का किद्दां एरिया कट सकते हैं। जिवें कि क्वेश्चन है आपां एग्जांपल लैके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इफ a जिंदे कोऑर्डिनेट ने -5,7, b जिंदे कोऑर्डिनेट ने -4, -5, c जिंदे कोऑर्डिनेट ने -1, -6 एंड d जिंदे कोऑर्डिनेट ने 4, 5 forms a quadrilateral, then find its area। हुण आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़िया है, हुण आपां देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प नाल असी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किद्दां बना सकते हैं। तो देखो आपां क्वाड्रिलेटरल बोले, सपोज है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 फिगर वाला 4 साइडेड फिगर जिहड़ी हुंदी उहनूं क्वाड्रिलेटरल बोलदे हो, जिन्ने पॉइंट्स ने a b c एंड d। a जिंदा कोऑर्डिनेट ने -5, 7, b जिंदा कोऑर्डिनेट है -4, -5, c जिंदा कोऑर्डिनेट है अपने कोल -1, -6 ते d जिंदा कोऑर्डिनेट है 4, 5। सानू इंदा की करना है एरिया करना है, बट सानू पता है कि सानू करना की आंदा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो असी की करते हैं इनू दो हिस्से डिवाइड कर देने हैं, दो ट्रायंगल्स की फॉर्म विच, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला सानू पता एरिया कड्ढण लई है, सेम तरीके नाल इस ट्रायंगल ਲਈ भी कढ लांगे, फिर दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड कर देंगे, साडे कोल की आ जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सो ਆਪਾਂ वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला ਆਪਾਂ कढदे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। सानू A ਦੇ कोऑर्डिनेट पता है कि ने -5, 7, B ਦੇ कोऑर्डिनेट पता है सानू -4, -5 ਤੇ D ਦੇ कोऑर्डिनेट सानू पता है 4, 5। ठीक है, सो ए किंदा काम करूगा x1 दा, ए y1 दा, ए x2 दा, ए y2 दा, ए x3 दा और ए y3 दा। असी एरिया ऑफ ट्रायंगल किद्दां कढदे सीगे 1/2 नाल आंदा x1 y2 - y3 प्लस x2 नाल आऊगा y3 - y1 प्लस आऊगा x3 आ जाएगा नाल y1 - y2। ठीक है, ये साडे कोल x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। असी की करना है इनका एरिया कढांगे और इनका एरिया कढांगे, फिर बाद चो दोनों नू ऐड कर देंगे, साडे कोल क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आपां एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एज सच नहीं पढ़िया, असी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़िया, असी एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प नाल आपां एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कढना है। सो पहला आपां इस ट्रायंगल का एरिया कढ रहे हैं। ठीक है, इत्थे सिर्फ वैल्यू सबस्टिट्यूट करनियां ने, इत्थे आ जाएगा -5 y2 - y1 मतलब y2 - y3, तो -5 प्लस x2 कितना है -4, y3 5 माइनस y1 कितना है 7 प्लस x3 जो कि है 4, y1 - y2 मतलब 7 - -5। असी की कितना है x1 की जगह -5 पुट किया है, y2 की जगह -5, y3 की जगह 5, x2 की जगह -4, y3 की जगह 5, y1 की जगह 7 और x3 की जगह 4, y1 की जगह अगेन 7, y2 की जगह -5, क्योंकि साडे कोल x1 y1 है सीगे, x2 y2 है सीगे, x3 y3 है सी, और आपां कढ के रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं आपां इनू, माइनस माइनस की होंदा है प्लस, तो आ गया -10 नाल आ गया -5 प्लस -4 प्लस माइनस की होंदा है माइनस, साइन वड्डे वाले दा ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ 7 + 5 12। ठीक है, सो 7 + 5 हो गया 12।
ए आ गया -2 और इस ब्रैकेट में सॉल्व किया -10। हुण आपां होर अगे सिंपलीफाई करते हैं। ए हो जाएगा +50, ए हो जाएगा +8 प्लस नाल आ गया 48। सो आपां टर्म्स नूं सिर्फ ऐड करना है, तो 48 + 8 + 50, ये हो गया 16, 9 तो 106। ये आ गया 1/2 नाल आ गया 106, कटिंग करांगे ये आ गया 53। सो साडे कोल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना आ गया है 53। तो मैं इत्थे लिख देना 53 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो की किता आपां इस ट्रायंगल दा एरिया कढिया है बाय यूजिंग फार्मूला जो कि सीगा 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हुण आपां नूं किहड़े ट्रायंगल दा एरिया कढना है, BCD वाले ट्रायंगल दा एरिया कढना है। फिर बाद विच आपां दोनों नूं ऐड कर दांगे। मैं लिस्ट कर लिया, B दे कोऑर्डिनेट सीगे अपने कोल -45, C दे कोऑर्डिनेट सी -16 एंड D दे कोऑर्डिनेट सी 4,5। असीं ये फार्मूला लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक काम करूँगा x1 दा, ये y1 दा, ये x2 दा, ये y2 दा और ये x3 दा और ये y3 दा। ठीक है, और आपां इस ट्रायंगल दा एरिया करना है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x1 की जगह -4, y2 की जगह -6, y3 की जगह 5 प्लस x2 की जगह -1, y3 की जगह 5 और y1 की जगह -5 प्लस x3 की जगह अपने कोल 4, y1 की जगह -5 और y2 की जगह -6। सिर्फ असी वैल्यू क्योंकि ये अपने कोल x1 सी, ए y1 सी, ए x2 सी, ए y2 सी, x3 और y3 सी। सो x1 की जगह -4, y2 की जगह -6, y3 की जगह 5, x2 की जगह -1, y3 की जगह अगेन 5, y1 की जगह -5, x3 की जगह 4, y1 की जगह -5 एंड y2 की जगह -6। सिर्फ असी वैल्यू सब्सटीट्यूट कीतियां ने। साडे कोल किहड़े ट्रायंगल दा एरिया आ जाऊगा, इस ट्रायंगल दा। तो आप सॉल्व करते हैं ना, ये आ जाएगा 1/2 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पर साइन नेगेटिव दी आऊगा क्योंकि साडे कोल 6 जड़ा है उनके अगे नेगेटिव साइन है। प्लस नाल आ गया -5, ए माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो 5 + 5 की हो गया 10 प्लस 4, इत्थे भी माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो -5 + 6 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस माइनस की होंदा है माइनस, साइन वड्डे वाले दा 6 ते अगे पॉजिटिव साइन आ रहा है। ये आ गया 1/2, ये आ गया 44 -10 + 4, तो 44 + 4 कितना आ गया 48, 48 - 10 आगे की है हाफ, सो ये कितना आ गया 38 / 2, कटिंग कर देने हैं, 38 2 1s एंड 19। सो साडे कोल इनदा आंसर कितना आ गया 19 स्क्वायर यूनिट्स। साडे कोल हुण कढना की सीगा, सानू बोलिया होया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल करना है। आपां दो ट्रायंगल्स का एरिया कढ लेता है, तो साडे कोल जेड़ा रिक्वायर्ड एरिया होगा, सो रिक्वायर्ड एरिया वो की है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आपां कढ लेते हैं 53 + 19 और बाहर की लिखेंगे आप स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो 53 दे विच 19 ऐड करके देख लेने कितना आंदा है। सो 9 + 3 कितना हो गया अपने कोल 12, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 और 72। सो इनका आंसर आ गया 72 स्क्वायर यूनिट्स। देखो दोबारा तो क्वेश्चन विच बोलिया सीगा कि ये चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, सानू कढना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट जो सानू पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे विच वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं की किया एक डायगोनल बना दिता, मैं क्या किया दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनके उत्ते भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, और इनके उत्ते भी लगाने हैं। दोनों एरियाज कट के एंड विच ऐड करोगे तो तुहाडे कोल क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कितना आ गया है 72 स्क्वायर यूनिट्स। सो अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC ए दे कोऑर्डिनेट ने 4, -6, B दे कोऑर्डिनेट ने 3, -2 एंड C दे कोऑर्डिनेट ने 5, 2, verify that median divides the triangle ABC into two equal areas। ये ਆਪਾਂ थ्योरम पढ़ी हुई है 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मीडियन उस ट्रायंगल ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ सपोज एक ट्रायंगल है A B and C। A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ 4, -6,
B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ 3, -2 ਐਂਡ C ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ 5, 2। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AD ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ट्रायंगल ABD ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ट्रायंगल ADC ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੁਅਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ AD मीडियन है, AD अगर मीडियन है ना मतलब आ दोनों लेंथ इक्वल हो गया। इट मीनस BD रेशियो DC की आएगी इक्वल आएगी। आप पिछली क्लास किया होया है सैक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। अगर एक लाइन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। तो मिड पॉइंट फार्मूला ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੇ 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ D ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ D x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ x1 ਦਾ, ਇਹ y1 ਦਾ, ਇਹ x2 ਦਾ और ਇਹ y2 ਦਾ। तो आएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि रेशियो की है सेम। तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 तो जिन्ना कितना आ जाएगा 4 क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 4। ऐदा ही जो y कोऑर्डिनेट करना है तो उनके लिए फॉर्मूला होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना है -2 + y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आ गया 0। सो इतना मतलब D के कोऑर्डिनेट सानू पता लग गए ने 4, 0। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆਵੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, B ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, C ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। AD ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ ਮੰਨੀ ਹੈ क्योंकि दिस रेशियो दिस की होंगी इक्वल तो असी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट कट लेते हैं 4, 0। ठीक है आप इत्थे लिख देने AD is median of triangle ABC। सानू टू प्रूव की करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC किंदे को लाना चाहिए है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्योंकि सानू बोला गया एक मीडियन एक ट्रायंगल दो इक्वल एरिया डिवाइड कर दिया मतलब इनका एरिया और इनका एरिया क्या आना चाहिए इक्वल। तो जो मैनू इस ट्रायंगल का एरिया कढ़ना है तो मैं की फॉर्मूला लगा सकता वा आ तुहाडे सामने कि जो भी 3 पॉइंट्स दिते हो ट्रायंगल का एरिया की होंदा है। तो पहला आप इस ट्रायंगल का एरिया करते हैं फिर इस ट्रायंगल का एरिया करते हैं फिर चेक करते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं और आना भी चाहिए इक्वल क्योंकि सानू पता है थ्योरम है गया थ्योरम का रिजल्ट ट्रू ही रहता है। सो आप करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, -6 B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ 3, -2 ਐਂਡ D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕਿਨੇ 4, 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ x1 ਦਾ ਇਹ ਕਰੂਗਾ y1 ਦਾ ਇਹ x2 ਦਾ ਇਹ y2 ਦਾ ਔਰ ਇਹ x3 ਦਾ ਔਰ ਇਹ y3 ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 x1 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y2 - y3 प्लस x2 नाल आ जाऊगा y3 - y1 प्लस x3 नाल आ जाऊगा y1 - y2 क्योंकि अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x1 की जगह 4 y2 की जगह असी पुट करना है -2 y3 की जगह आप 0 प्लस x2 की जगह 3 y3 की जगह 0 माइनस y1 की जगह -6 है। ठीक है प्लस x3 जो कि है अपने को 4 और y1 - y2 y1 कितना है -6 और y2 कितना है -2। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है x1 की जगह 4 y2 की जगह -2 y3 की जगह 0 x2 की जगह 3 y3 की जगह 0 y1 की जगह -6 x3 की जगह 4 y1 की जगह -6 एंड y2 की जगह -2। तो साढ़े को इस ट्रायंगल का एरिया निकल आऊगा। सॉल्व करते हैं आप ये आ गया 1/2 4 × -2 प्लस 3 × 6 प्लस अगेन माइनस प्लस तो -6 + 2 कितना हो जाएगा -4। ठीक है सिंपलीफाई करते हैं आप आगे ये आ जाएगा 1/2 देखो 4 × 2 की हो जाएगा 8 तो ये आ गया -8 प्लस 6 3 = 18। ठीक है
प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया -16। ठीक है, ये आ गया 1/2। ये दोनों माइनस माइनस की हो जाएंगे प्लस, तो ਆਪਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ऐड करके देख लेने हैं। ये आ जाएगा 16 + 8 हो जाएगा अपना 8 + 4 12, 12 ਤੇ 2 14, तो 24 आ गया। ये आ गया -24 + 18, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो -24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ 6, तो ये आ गया -6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज -3। बट तुहानू पता है एरिया कभी भी किसी चीज़ का नैगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लाएंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो इनका आंसर क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो अपने को इस ट्राइंगल का एरिया आ गया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। हुण आपां नूं प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या आवे 3 स्क्वायर यूनिट्स आवे। तो आप हुण किहड़ा एरिया लांगे ट्राइंगल का, जो कि अपन बोलिया होया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अपने को जिहड़ा A है वो होएगा 4 - 6, D है अपने को 4 0 एंड C अपने को जिहड़ा है वो है 5, 2। तो ये काम करूँगा x1, ये करूँगा y1, ये करूँगा x2, ये करूँगा y2, ये करूँगा x3 और ये करूँगा y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल है उनका आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, अपने को कितना एरिया निकल आऊगा इस ट्राइंगल। सो करते हैं आप सॉल्व। ये आ गया 1/2, x1 की जगह असी पुट करांगे 4, y2 की जगह असी पुट करांगे 0, माइनस y3 की जगह 2, प्लस x2 की जगह असी पुट कर रहे हैं देखो वैल्यू 4, y3 की जगह आप पुट कर रहे हैं 2 और y1 की जगह -6, प्लस x3 की जगह असी पुट कर रहे हैं 5, y1 की जगह असी पुट करना है -6 और y2 की जगह असी पुट करना है 0। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। ये आ गया 1/2, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, ए क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 4 = 32। ठीक है, इतने क्या आ जाएगा 5 × 6 की हो जाएगा 30, तो आ गया -30। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया -38 + 32 और उन्होंने की करना है हाफ, इतों की मैं अगे कंटिन्यू कर रहा इतने। ठीक है, सो अपने को आ गया हाफ -38 + 32 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया -6, ये आ गया -3। अगेन एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप कि लांगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो कितनी आ गई 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो अपने को आ भी वैल्यू कितनी आ गई 3 स्क्वायर यूनिट। तो सानू प्रूफ की करना सी आ मीडियन ट्राइंगल में 2 इक्वल एरियाज डिवाइड कर रही है, इनका मतलब इनका एरिया और इनका एरिया सेम आना चाहिए। असी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया कि इनका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा सी, इनका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। इनका मतलब साडी स्टेटमेंट जी है वो की हो गई वेरीफाई। सो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक है डिस्टेंस फार्मूला, एक है सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूले का ही स्पैशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला जो रेशो इक्वल होन, तो तीसरा आप डिस्कस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके नाल चैप्टर साडा खत्म होंदा है। बाकी तुसी अपनी प्रैक्टिस जिहड़ी है इस चैप्टर की पूरी रखनी है। तुसी इस क्वेश्चनस नूं दोबारा रिवाइज जरूर करना, तुहाडा बेसिक कंसैप्ट जिहड़ा है वही चलेगा जो कि आपां शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुहानूं पता लग गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प नाल असीं क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी कढ सकते हैं, जो कि आपां पिछले एग्जाम्पल डिस्कस किया सीगा। सैक्शन फार्मूला उदों यूज़ करना है जो सानू 2 पॉइंट्स दिते ने तो विचकार किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट करने ने तो रेशो दी होवे। अगर रेशो इक्वल होगी तो असी सैक्शन फार्मूला की जगह मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला उदों यूज़ करना है अगर 2 पॉइंट्स के विचकार का डिस्टेंस कढना है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर अज खत्म हो रहा है। धन्यवाद।